Good morning, students of class 5. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed all the exercises and the writing section of lesson 9 of Wordsworth English Reader book, that is Priceless Slippers. And I am sure all of you must have completed all the exercises and writing section of lesson 9 in your English notebook. And today, children, I'm going to start with English grammar. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 73, as I'll be starting with unit 16, simple past tense. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 73, as I'll be starting with unit 16, simple past tense. Now, students, we use the past tense to express action which took place in the past. हम past tense कब use करते हैं बेटा? वो सारे actions बताने के लिए जो past में already हो चुके हैं, है ना? And in this particular unit, we'll be revising the simple past tense, how to frame sentences in the past tense, and then how to frame negative sentences and interrogative sentences in simple past tense. Negative sentences जिनमें not लगा होता है, and interrogative sentences are the questions. How do we frame negative and interrogative sentences in simple past tense, है ना? And ये आपको बेटा पता है कि we use the simple past tense to speak about the actions that started and finished at a specific time in the past. वो सारे actions जो past में एक specific time पे start हुए और specific time पे finish हुए, उन actions को denote करने के लिए हम कौन सा tense use करते हैं बेटा? Simple past tense. Fine. Simple past tense is also used to describe past habits. जो हमारी कोई भी habits जो past में थी, past में जो भी events हुए हैं, past में जो भी actions हुए हैं, past में जो भी situations हुए हैं, जो भी कुछ past में हुआ है, that is events, actions, situations, habits, जो भी past का है, वो सब हम simple past tense में denote करते हैं. Fine. Now, I'll give some example, है ना? मैं आपको पहले तो कुछ past tense के sentence आपको बताती हूँ. Then I'll be revising how to form the past tense of the verb, है ना? Root form से कैसे past में करते हैं. But before that, I would like to explain the past tense with some examples. Now, let's take the example number 1. Hansika and Shraddha went to Dubai. Fine. This is my first example. Hansika and Shraddha went to Dubai. अब बेटा इसमें आइडेंटिफाई करने का सबसे easiest way है to look at the verb. जो भी action word है, verb is the action word, वो अगर past में है, ये indicate करता है that the sentence is in past tense. Go root form of verb है और go का past क्या है? Went. तो ये went indicate कर रहा है that Hansika and Shraddha went to Dubai, कि वो दुबई गए थे, है ना? Past में जो already वो कर चुके हैं. So Hansika and Shraddha went to Dubai. Then they saw many amazing places. In Dubai, what did they see? They saw many amazing places. अब इसमें वर्ब कौन सा है? saw. और saw क्या है?
पास्ट फॉर्म है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब सी का। तो ये सॉ इंडिकेट कर रहा है कि दुबई में दे सॉ मेनी अमेजिंग प्लेसेस, है ना। फिर दे purchased gifts for their friends from Dubai. What did they do? They purchased gift for their friends. अब इसमें जो वर्ब है वो कौन सा है? Purchased. And purchased क्या है? Past form of purchase. P-U-R-C-H-A-S-E. Purchase का past form क्या है? Purchase. Now, अब इसी में मैं एक नेगेटिव सेंटेंस भी इंक्लूड करूंगी। They did not stay there for long. That means in Dubai they did not stay there for long. अब यहाँ पे did not stay हमेशा पास्ट टेंस में not के साथ did लगता है, ये आपको याद रखना है ना। जैसे do not और does not सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं did, है ना। did लगता है not के साथ इन सिंपल पास्ट टेंस। एंड दैट रिमाइंड्स मी, बेटा जब भी क्वेश्चन में जैसे why did, why did या did you go, जब भी क्वेश्चन में did होता है तो इंडिकेट करता है कि आप जो भी आंसर लिखोगे वो वर्ब आपका हमेशा पास्ट टेंस में होगा। ये मैं आपको एक क्लू बता दूं, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक्स। व्हेनेवर यू read the word did in the question, that's the indication for you that you need to write the answer in the past tense. और answer past tense means आपका verb जो है वो past form में change होगा। Now, so did not stay, and जो भी sentence में not लगेगा that is negative sentence। और ये did not stay है, not और did दोनों यूज हुआ है सेंटेंस में, ये इंडिकेट कर रहा है दैट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव एंड इन विच टेंस, इन सिंपल पास्ट टेंस। अभी जब मैं और आपको आगे एक्सरसाइजेस कराऊंगी सो इट विल बी क्लियर टू यू। अभी तो मैं आपको बस पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज पास्ट टेंस। फाइन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज दे did not like the food served there, है ना। अब again you see they did not like the food served there, again did not और like ये यूज हुआ है, दैट दिस इंडिकेट्स दैट ये नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज नॉट लगा है। जिस भी सेंटेंस में नॉट लगा होता है वो नेगेटिव होता है, बट उसके पहले अगर डू डज है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर डिड लगा है तो वो पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एंड बेटा जब भी पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है ऑलवेज रिमेंबर द वर्ब कम्स इन दी रूट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में आप देखो स्टे है, स्टेड नहीं है, लाइक है, लाइक नहीं है, बिकॉज यू शुड कीप इन माइंड कि जो वर्ब होता है नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस में वो हमेशा रूट फॉर्म में ही होता है। फाइन। देन the next sentence is did they tell you about Dubai? Did they tell you about Dubai? Now in this is a question, and this questions you all know are known as interrogative sentence, and question में अगर did आता है this indicates that the question is in simple past tense. So did they tell you about Dubai? Question में did आया है indicating that the question is in past tense. Okay. So I hope
अभी आपको थोड़ा थोड़ा पास्ट टेंस समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनमें नॉट लगा रहता है, एंड पास्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा उसमें हमेशा डिड लगा होगा। क्लियर? सो ये तो एग्जाम्पल्स है बेटा ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। नाउ अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी, एंड देन मैं आपको थोड़े रूल्स भी समझाऊंगी, हाउ टू फॉर्म द पास्ट फॉर्म्स फ्रॉम द वर्ड। रिवाइज करेंगे सो दैट सबको फ्रेश हो जाए। अभी जो मैंने सेंटेंस बताया उसमें से आपको क्लियर हो गया कि असर्टिव सेंटेंस मीन जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट टेंस के, उनमें हम हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उनका हम हमेशा पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हंसिका एंड श्रद्धा वेंट टू दुबई, तो वेंट क्या था, पास्ट फॉर्म था किसका, गो का, गो रूट फॉर्म थे, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम बेटा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, अब असर्टिव सेंटेंस मीन्स दी सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। देन इन दी नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है और समझना है बेटा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं उसमें हम did not plus the root form of verb, जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होता है, वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में ही होता है। एंड देन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स द क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा हमेशा वी यूज डिड, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, डिड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हो ना, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है, द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन प्लस द सब्जेक्ट and the root form of verb। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा डिड का यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट एंड द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको अभी 3 एग्जांपल्स दूंगी, है ना। असर्टिव सेंटेंस में वी ऑलवेज यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। असर्टिव सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंसेस। देन नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा जो पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। एंड डिड बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हमारा डिड से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा डिड से स्टार्ट होगा तो डिड का डी कैपिटल होगा, और ये हमेशा डिड जो है सब्जेक्ट एंड रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले आएगा। नाउ आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स इसी के ऊपर। नाउ the examples are, the first one, Kavita baked a cake। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। और मैंने क्या बोला था, असर्टिव सेंटेंस में इससे पहले आपको जो 3 रूल्स सिखवाए थे पास्ट टेंस के,
कि असर्टिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, बेक्ड है। बेक्ड, बेक रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है BAKE, एंड बेक का जो पास्ट फॉर्म है दैट इज बेक। तो वर्ब किस में है, पास्ट फॉर्म में। देन माय नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। कविता, अब इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी, है ना। कविता डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में एज आई सेड हमेशा उसमें डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो बेक का रूट फॉर्म क्या होता है, बेक। हमेशा पास्ट टेंस में जो वर्ब है वो रूट फॉर्म में रहेगा, उसके पहले हमेशा क्या आएगा, डिड नॉट। सो कविता डिड नॉट बेक अ केक, ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर, ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। नाउ the third will be an interrogative sentence and that will be did। as मैंने समझाया था कि did हमेशा interrogative sentence में subject और root form of verb के पहले। तो यहाँ subject कौन सा है, कविता। did कविता, फिर root form of verb bake a cake and at the end will come a question mark। और ये कौन सा sentence हो गया बेटा, इंट्रोगेटिव। फाइन। सो अब आप समझोगे, कविता बेक्ड अ केक, ये सिंपल सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस है। एंड इन असर्टिव सेंटेंस यू नीड टू कीप इन माइंड दैट द वर्ब इज ऑलवेज इन द पास्ट फॉर्म। एंड बेटा पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, रूट फॉर्म के लिए कुछ रूल्स हैं जो अभी मैं रिवाइज करूंगी। देन जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा डिड नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सो कविता डिड नॉट बेक अ केक। कीप इन माइंड कि पास्ट टेंस में जो भी, क्या पास्ट टेंस के कोई भी बेटा टेंस का जो सेंटेंस अगर वो नेगेटिव है तो आपको हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज करते हैं। तो कभी भी पास्ट में आप ईडी या वो नहीं यूज करेंगे। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पास्ट टेंस में है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, डिड से। और डिड किसके पहले आता है, सब्जेक्ट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस बेटा दोनों में हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं। एंड सिंपल पास्ट टेंस के जितने भी अभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो सब हमेशा किस, उसमें क्या होगा, डिड होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें डिड नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। फाइन। सो आई होप अभी आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़े रूल्स रिवाइज करवाऊंगी हाउ टू फॉर्म दी पास्ट टेंस। सबसे पहले तो बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न टू यूनिट 10 वर्ब्स। उसमें रूट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। सो if I turn to page number, I'll tell you the page number is 43. 43 में आप देखोगे there are about 69 verbs given और उनके past forms हैं। Please learn those past forms। वो एक तो आप इसी बुक में से, मैंने पहले भी जब यूनिट पढ़ाया है तो आपको बोला है पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल आपको लर्न होना चाहिए, बिकॉज आगे की एक्सरसाइजेस अब सब बेस्ड है। तो एटलीस्ट आपको 69 वर्ब्स के रूट फॉर्म के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल तो लर्न कर लोगे। फाइन। अब मैं आपको कुछ रूल्स समझाने जा रही हूँ हाउ टू फॉर्म दी पास्ट टेंस ऑफ दी रूट फॉर्म, है ना। सो पहला रूल कहता है पास्ट फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं। वी, ये मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 3rd and 4th, but we'll once again revise so that you recollect your this thing. We add D, हम D ऐड करते हैं, और ED, या तो हम D यहाँ ED ऐड करते हैं to most
of the verbs to change their form. For example, ना अब बेटा या तो हम बहुत सारे वर्ब्स के एंड में डी ऐड करते हैं या ईडी ऐड करते हैं टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. द एग्जाम्पल इज क्लोज. अब बेटा क्लोज का अगर मुझे पास्ट फॉर्म लिखना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, सिर्फ डी. तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड. मैंने क्या ऐड किया, डी. क्लोज का क्या हो गया, क्लोज. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आस्क. आस्क में मैंने क्या ऐड कर दिया, ईडी. तो क्या हो गया, आस्क्ड. ठीक है. लिव. लिव में मैंने क्या ऐड किया, डी. तो क्या हो गया, लिव्ड. देन मैंने लुक में क्या ऐड कर दिया, ईडी. सो यू कैन सी कि बहुत सारे जो वर्ब्स हैं रूट फॉर्म, उनमें या तो हम एंड में डी ऐड करते हैं या ईडी ऐड करते हैं टू फॉर्म द पास्ट फॉर्म. क्लोज में मैंने खाली वी हैव एडेड डी टू फॉर्म द पास्ट फॉर्म क्लोज. लिव में वी हैव एडेड डी टू फॉर्म द पास्ट फॉर्म दैट इज लिव, है ना. CLOSE क्लोज, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो गया, क्लोज. CLOSED खाली हमने डी ऐड किया. देन LIVE लिव. लिव में हमने डी ऐड किया तो हमारा पास्ट टेंस क्या हो गया, लिव. LIVED लिव. देन आस्क. आस्क में आपने क्या ऐड किया, ईडी. तो आपका पास्ट फॉर्म क्या हो गया, आस्क. ASKED. LOOK लुक. इसमें भी आपने ईडी ऐड किया तो पास्ट फॉर्म क्या हो गया, लुक्ड. नाउ this was the first rule. Now the second rule is we double the last letter and add ed to many words with single syllable to change their form. Fine. Now I'll explain the second rule. We double the last letter and add ed to many words with single syllable to change their form. Now first of all, आई होप आपको याद है, मैंने पहले भी सिखाया है हाउ टू फाइंड अ सिलेबल इन दी वर्ड, है ना. कोई भी वर्ड यू नीड टू स्पीक लाउडली कीपिंग योर palm in front of your mouth and the number of puff of hot air you feel on your palm will decide the number of syllables in a word, है ना. For example, let's take the word grab. Let's take the word grab, है ना. grab मतलब एकदम दबोच के. अब if you speak loudly the word grab, how many number of times did you feel the hot puff of air on your palm? 1. That means this word has got single syllable. 1 को हम single बोलते हैं ना, तो single syllable word है, तो उनमें जब जो भी single syllable verb है तो उनमें उनका past form बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट लेटर दैट इज दी कॉन्सोनेंट, जो लास्ट लेटर होता है उसको हम डबल करेंगे और उसमें हम ईडी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
उसका पास्ट टेंस है ना। द वर्ड्स है ना जिनमें सिंगल सिलेबल होता है वर्ब्स में, और उनमें हम जो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी ऐड करेंगे तो वो हमारा पास्ट फॉर्म हो जाएगा। फाइन। देन अदर एग्जाम्पल इज स्लैम। यू स्लैम द डोर, इज इट? तो स्लैम का क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना भटकाना, स्लैम। फाइन। डबल किया, ईडी लगाया। देन रब, रब again ru double b ed rub. These are all verbs which have got single syllable, जिन सब में एक ही syllable है। उन verbs को पास्ट फॉर्म उनका फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल करेंगे और ed लगाएंगे। रब का क्या हो जाएगा, रब। पिन, पिन का क्या हो जाएगा, pinned. So you can see another example is stop. Stop का क्या हो जाएगा, stop. So जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं है ना, उनका हम पास्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, जो उनका लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके उसमें हम ईडी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका पास्ट फॉर्म्स है ना। सो अभी एक रूल क्या था कि जो मोस्ट वर्ब्स होते हैं उनके एंड में या तो हम खाली डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं टू फॉर्म दी पास्ट टेंस। एंड द नेक्स्ट रूल सेज कि सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं बेटा, उनमें जो कॉन्सोनेंट होता है लास्ट उसको डबल करके ईडी लगाएंगे तो उनका पास्ट टेंस। सो आई होप ये दो रूल अभी सबको समझ में आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज एंड एक्सप्लेन दी नेक्स्ट रूल। ये रूल्स थोड़े आप लोग रिवाइज कर लोगे, so it will be easier for you to solve the exercise based on past tense, है ना। पढ़ा तो सब में है, थर्ड में फोर्थ में, बट सब भूल गए ना। रूल नंबर 3 says we remove y and add IED in many words to change their form। ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है कि बहुत सारे वर्ब्स जिनके एंड में वाई होता है उनका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम वाई को रिमूव करते हैं और क्या ऐड करते हैं, IED। लेट्स लुक एट द एग्जांपल चिल्ड्रन। द एग्जांपल्स आर, जैसे वर्ड है क्राई, क्राई के लास्ट में क्या है, वाई, तो इसका वाई रिमूव करके हमने क्या ऐड कर दिया, IED, तो हमारा क्या हो गया, फ्राइड। देन फ्राइड, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइड। फ्राइड के एंड में भी क्या आता है, वाई आता है। सो हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव द वाई एंड रिप्लेस इट विद IED, तो क्या हो गया, फ्राइड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ट्राई, TRY, ट्राई। अगेन वी विल रिमूव द वाई एंड ऐड IED, तो क्या हो जाएगा, राइट। सो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग पे लास्ट में वाई आता है उनका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमूव द वाई एंड रिप्लेस इट विद IED। देन कैरी, व्हाट वी डू टू फॉर्म द पास्ट फॉर्म, वी रिमूव द वाई एंड रिप्लेस इट विद IED, तो क्या हो जाएगा, कैरीड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज वरी। वरी में क्या होगा, वरी में वी रिमूव द वाई एंड रिप्लेस विद IED, तो क्या हो जाएगा, वरी। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हरी, HURRY, वी विल रिमूव द वाई एंड रिप्लेस इट विद IED,
hurried. So students, this is the third rule which says कि वो verbs जिनके end में y आता है, what are we going to do? We are going to remove the y and replace with id to form the past tense of the verbs. So for today, till here only. I'll be continuing the remaining rules in my next video. Thank you students. Please do learn the past tense and past participle forms of the verbs given in Unit 10 of your English grammar book. That's all for today. Thank you students. Have a good day ahead.